Good evening, India. Good morning, USA. So, my name is Lalit Garg, and today we welcome our very special family from Palwal, Haryana, where the Bachchapanti is born. Let's welcome Ahana Virmani along with her mother, Dr. Sangeeta Virmani. Ma'am, thank you. Thanks for a lot for sparing some time and to have a discussion about the progress of Ahana. Uh, thanks a lot for the joining session. Thank you, sir. So we'll go to start this session with a little bit a short introduction about the Ahana. So today's evening star that we have in this session. After that, we're going to have a little bit of introduction from the Dr. Sangeeta Virmani ji. And after that, I'm going to tell many things about the Ahana and ma'am, that why this session is very special to us. And after that, we're going to showcase the brain power of what Ahana can do with her brain power. So, Hana, can you please tell something about yourself, beta? Beta, your voice. Yes, beta. Yes, please. So, first of all, I want to take a moment to express my gratitude for Bachchapanti. This program is so special to me, and I'm just speechless. What should I say? I can't express that words. I don't know how that the blindfold is so amazing. Like, and special thanks to Lalit sir, Leena ma'am, and Sonali ma'am. That Sonali ma'am, when she gave us that activities, it doesn't feel like a lecture. It feels like we are playing games with each other. And blindfold, when there was a demo, when other students gave me the demo, my parents' reaction was expected. But when I did blindfold, my mother made a video and I saw, and I was like, "This is Ahana. How can I do this?" Finally. Very beta. So, beta, in which grade you are in right now? I'm in fifth. Fifth grade. And from which school you are? MDIS. MDIS, Fardawar, right? Yes, sir. So, ma'am, can you please have a short introduction of yourself? Hello, everyone. I'm Dr. Sangeeta Virmani. I'm from Palwal. I'm a cosmetologist and I have a clinic in Palwal only. So, this is my introduction. Thank you, ma'am. So, sir is not available. Dr. Virmani sir is on. Not, he is busy in some other stuff. So we are expecting him as well. That's absolutely fine. So let's start with the little bit of let question answer round. So first thing I want to ask. I can see the Ahana's excitement. Ahana, thanks for a lot for your kind words, and I know how much excited you are for today's session and about the. I got lots of reviews from the your teacher and your parents as well, that how excited you are always about taking the Bachchapanti classes. Thank you, beta. We have lots of stuff that we're going to have in the future for you. So my first question to ma'am, how you came to know about the Bachchapanti? कैसे पता लगा आपको बच्चापंथी के? सर एक्चुअली 1 year बैक हमारे कुलीग ही थे सर, वो पीडियाट्रिशियन है, उन्होंने बताया कि हमारे किसी कांटेक्ट में बच्चे हैं, वो ब्लाइंड फोल्ड करके भी रीड कर लेते हैं। तो हमें लगा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आई वाज सर्चिंग कि ऐसा कुछ मुझे मिले मेरे बच्चे के लिए, लेकिन कुछ ऐसा कांटेक्ट में नहीं था। फिर सडनली एक दिन आपका एडवर्टाइजमेंट देखी, फिर मेरे एक फ्रेंड ने भी बताया, मनीषा, कि आप यहाँ पलवल में ही हैं। तो मेरे लिए तो ये बड़ा शॉकिंग था कि इतना पास होके भी हमें ऐसी चीजें पता नहीं थी। तो फिर हम दोनों ने ही डिसाइड किया कि बिल्कुल न्यू थिंग है बच्चों के लिए। तो आई वाज मतलब मैं तो काफी टाइम से सर्च ही कर रही थी कि ऐसा कुछ मिले मुझे बच्चों के लिए, तो तभी मैंने ज्वाइन कराया सर। तो एक बात बताना चाहता हूँ, शायद मे बी आई डोंट नो, आपको पता नहीं पता, तो मनीषा मैम जो है वो मेरी डॉटर है देवांशी, उसकी मैम भी है, टीचर भी जी है। जी ठीक है जी। जी। और मुझे बहुत टाइम में पता लगा कि शी वाज माय जूनियर इन माय हाई स्कूल एज वेल। हाँ जी हाँ जी। तो उनकी गुड़िया भी कर रही है, एंड अहाना और उनकी गुड़िया यशनूर, दे आर बोथ आर बेस्ट फ्रेंड एज वेल, राइट? Yes, sir. अच्छा, एक बात बताइए, आना आपने बताया जैसे मम्मा वाज सर्चिंग फॉर सम स्टफ लाइक दिस, राइट? लेकिन आपका है, यू आर फ्रॉम द MDPIS से है आप, एंड यू आर इन द ब्राइट स्टूडेंट्स कैटेगरी। आपको नहीं लगा मम्मा ने कहा कि इस तरह की कुछ क्लास लेनी है, तो आपको नहीं लगा कि पढ़ाई में कुछ मतलब इट्स गोइंग टू बी सम बॉटलनेक इन माय एजुकेशन, या मैं इतना पढ़ाई करती हूँ और मुझे कुछ टाइम वेस्ट होगा मेरा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि यही जो एजुकेशन के लिए जो मेरा माइंड चाहिए वो इसको स्ट्रॉन्ग बना रही है, मेरी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है।
तो इसलिए मैंने मना नहीं करा कि मैं ये नहीं कर सकती, मेरी एजुकेशन डिस्टर्ब होगी। उल्टा मुझे ये लगा कि आई शुड डू दैट और मैं अपनी क्लास में बहुत अच्छा करूंगी, और क्योंकि मेरा माइंड मतलब वो एक्चुअली स्टार्टिंग में जब हमने सोचा था कि कुछ ज्वाइन कराते हैं तो शी वाज रिलक्टेंट कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। शी वाज थिंकिंग कि ऐसा कुछ एजुकेशनल क्लासेस ना हो, तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी थी। लेकिन जब हमने एक दो डेमो क्लासेस ली तब उसको लगा कि हाँ ये कुछ फन क्लासेस हैं, मैं फन फन में कुछ नया सीख सकती हूँ। फिर उसने बोला कि नहीं मुझे करना है। एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स इज कि नॉर्मली पेरेंट्स का हमसे कंसर्न आता है कि वेल लेट्स वी हैव अ इंक्वायरी, तो पेरेंट्स से कहते हैं हम कि पेरेंट्स कहते हैं द ओनली कंसर्न दैट वी हैव, उसकी पता नहीं बच्चे को कहेंगे क्लास लग रही है तो ही विल गो टू जॉइन, शी गो टू जॉइन नॉट नॉट। तो हम बस ये कहते हैं कि लेट्स हैव अ डेमोस्ट्रेशन, बिकॉज हम पढ़ाई नहीं करा रहे, पढ़ाई के लिए स्कूल बहुत अच्छे, आप हर पेरेंट्स अच्छा कर रहा है, ट्यूशन लगा रखे हैं, बट वी आर जस्ट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ब्रेन ताकि वो पढ़ाई में सपोर्ट मिले, एंड इट बिल्कुल। एवरीथिंग इज इन अ वन वे। मैं हमेशा कहता हूँ सेशंस के अंदर पेरेंट्स में भी, किड्स लाइक ओनली 4 थिंग्स: फन, मैजिक, गेम एंड एक्टिविटी। तो हमें जो बच्चों को चाहिए वी हैव टू गिव दैम फन, मैजिक, गेम, एक्टिविटी। जो पेरेंट्स को चाहिए वी हैव टू गिव द पेरेंट्स इंप्रूवमेंट, और जो हमें चाहिए व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम यूर एज वेल एज सपोर्ट इज रेफरेंसेस, जो आपसे हमें मिल रहे हैं। थैंक यू फॉर द प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ रेफरेंसेस एज वेल। आपका भी थैंक्स, एंड नीतू जी हैं, शी सपोर्ट्स अस अ लॉट, उन्होंने भी काफी रेफरेंस दिए हैं, तो थैंक्स फॉर दैट एज वेल। अब एक काम करते हैं, ऑडियंस को काफी लोग हैं जुड़ भी गए हैं, एंड आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल, योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर आल्सो वेटिंग फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ आना, कि क्या है ब्लाइंडफोल्ड की बात चल रही है, व्हाट दिस टाइम। तो लेट्स हैव ए स्मॉल डेमोस्ट्रेशन कि अहाना अपनी ब्रेन पावर से, एंड जिसे हम मैजिक बोलते हैं, इट्स नॉट अ मैजिक एक्चुअली, इट्स साइंस डेवलपमेंट, इसके पीछे साइंस है, ये कोई मैजिक नहीं सिखा रहे हम लोग। तो हाना की जो साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि शी कैन सेंस द ऑब्जेक्ट ओवर द स्क्रीन एज वेल, फ्रॉम द डिस्टेंस एज वेल। Let's have a small demonstration of that. So I would request, ma'am, could you please do you have a blindfold strip with you? यस सर। Okay, please help her to prepare for the blindfold activity. Very good. तो आप सब लोग देख सकते हैं कि Ahana is preparing for the blindfold activity. Blindfold strips के नीचे she is having the quarter pads as well, ताकि we'll make sure that nothing is visible to her. Now we'll try. Now I'll ask ma'am to please shuffle the cards in front of screen. बेटा पीछे हो तो आराम से। Be comfortable. Be comfortable. You are doing amazing, बेटा. Be comfortable. Sit straight. आराम से, one by one, आराम से लगाएं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट अ मैजिक, ये सेंसिस डेवलपमेंट है हमारा, जो भगवान ने में वी हैव गॉड गिफ्टेड अस 5 सेंसेस, बट एनी हाउ 90% टाइम वी आर यूजिंग ओनली 2 सेंसेस, ईयर एंड अभी सुनने वाली और देखने वाली। सो ब्रेन सेल्स करस्पॉन्डिंग टू 2 सेंसेस वी आर यूटिलाइजिंग। यस, रेडी? मेरी कुछ की बात हुई थी तो वो लोग मतलब वो लोग डर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं, ये सेफ नहीं है माइंड के लिए, ऐसा कुछ एक्टिवेट नहीं कराना चाहिए। तो अब मैं उनको बता सकती हूँ कि कोई ऐसा जादू चीज नहीं है, सब कुछ जो प्रोग्राम है पूरा साइंटिफिक बेस्ड है, तो वो ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए ही है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है जो ब्रेन को डैमेज कर सके। मैम मैं देखो, जिन लोगों को इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है ना, पहले की मैं हमेशा बात करता हूँ, जब मोबाइल आया था ना, तो पीपल आर नॉट एबल टू बिलीव ऑन दैट कि मोबाइल कैसे बिना वायर की बात हो सकती है, बट एवरीवन यूज्ड टू ओवर दिस पॉइंट। दूसरा क्योंकि हमारे पास वी हैव अ टीम ऑफ 4 डॉक्टर्स एज वेल, जो रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं इस चीज के लिए, इसी लिख रहे हैं इसके ऊपर, और हमारे पास तो बहुत सारे डॉक्टर्स कैटेगरी के बहुत बच्चे हैं, मतलब इवन पीडियाट्रिशियंस हमारे पास है, गायनेक हमारे बच्चे हमारे पास है, तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। और कुछ बात होती तो मेरी दोनों गुड़िया है, वो सबसे पहले स्टार्ट किया था बच्चा बनने, दे आर डूइंग द ओके। आना इज रेडी बेटा? बेटा पीछे हो थोड़ा सा, मैम कार्ड शफल करके कार्ड दिखाई जरा एक बार। यस, यस मैम कार्ड दीजिए। यस बेटा आवाज कम आ रही है, थोड़ा आप माइक के पास आइएगा। Sir, the number is 216 and there is a cake. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैम प्लीज शफल वन मोर कार्ड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस मैम, बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा, वेरी गुड। यस मैम, Fruit, this is a yellow color and it's banana. वेरी गुड बेटा। वेट वेट वेट, कैन यू आइडेंटिफाई द स्टफ ओवर द स्क्रीन एज वेल? Yes, sir. Okay, so I am shuffling the cards. You can see I have lots of flash card that we with me. I am shuffling the same. उसके साथ एक कार्ड दिखाएंगे, लेट्स सी।
Is Ahana is able to recognize this? Yes, Ahana. This is an animal Yes. and this is fox. Very nice, beta. Very amazing. One more card, please. One more card. Yes. What is that? Keep yourself neat and clean. Very neat and tidy. Very good, beta. Very good. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. What is that? What is in my hand? Sir, this is Cadbury Dairy Milk. अच्छा, very good. एक काम हो गया थोड़ा सा. You can read as well, right? Yes, So sir. what I am showing to you. Where is my finger? Yes. Just try. So bring it closer, can you please? Yes. कुछ Is फोन it नंबर को दिखा जाए. Yes. 91 Yes. Very good. 9 Yes. 3 5 Yes. 4 Yes. Very good. Very good. अच्छा कर रहे हैं आप. Very good. 4 9 Yes. 6 7 1 3 7. Very good, beta. Very nice. Very nice. You are able to identify the very small letters as well. You can open your blindfold, beta. बहुत अच्छा किया आपने. Amazing. Just rub your hands. Very good, beta. आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं. अच्छा. हाँ. अच्छा, आहना एक बात बताइए. आप क्लास में आते हैं, क्लास में मतलब हैव यू परफॉर्म दिस एक्टिविटी? मुझे पता है आपने ये एक्टिविटी मम्मा के सामने की है, परफॉर्म पापा के सामने की है. जब मम्मा ने फर्स्ट टाइम इस एक्टिविटी को आपको करते हुए देखा था, हाउ इज हर रिएक्शन? मम्मा की रिएक्शन कैसी थी? मम्मा की रिएक्शन ये था कि मम्मी को लग गया था कि ये कैसे हो सकता है. जब डेमो में मम्मा को लगा कि ये नीचे से देख रहे हैं, पर अच्छा. जब मम्मी ने मेरा करवाया, हर टाइम मम्मी मेरा ब्लाइंडफोल्ड बांधती थी और मम्मी नीचे से चेक भी करती थी कि कुछ दिख भी नहीं रहा. फिर भी मम्मी कहती है तुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा, हाउ कैन यू रीड दिस. एंड बहुत ही शॉकिंग रिएक्शन था मम्मा का. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा. मैम आप बताइए, आपने डेमो देखो, गुड़िया ने बहुत अच्छी बात बताई है. हम जब दूसरों के बच्चों को देखते हैं ना, आपने डेमो में देखा, आपने देखा कि हाँ ये किड कैन डू दैट, राइट? एंड यू आर सर्चिंग फॉर सम स्टफ. बट बात आती है जब अपने बच्चों की बात आती है तो रियली इट्स समथिंग अमेजिंग, जो हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमारे बच्चे कर पाते हैं. बिल्कुल तो बिल्कुल. आपको कैसा फील हुआ मतलब उस दिन? और आप मुझे सर का रिएक्शन बताइए कि सर को कैसा लगा जब आपने पहली बार दिखाया ब्लड? सब बिल्कुल वो मतलब अभी तक भी ऐसा बिलीव नहीं होता. कुछ टाइम तक तो हम लोग कंटिन्यूअसली इसका सर्च कर रहे थे, देख रहे थे कि कुछ दिख तो नहीं रहा. फिर अपने हमने आईज पे उसको कवर करके देखा कि सच में नहीं दिखता कुछ भी. और मेरे हस्बैंड का तो मतलब वो अभी भी इसको टीज करते हैं, तुझे जरूर दिख रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है. अच्छा, वैसे बता देता हूँ ऑडियंस को, कई बार ना हमारे पास वी हैव लॉट्स ऑफ पेरेंट्स जो बच्चों से कहते हैं तुम्हें दिख रहा होगा. कई बार ना बच्चे दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, राइट? दे नो दिख तो रहा ही है, बट कहाँ से दिख रहा, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन. तो कहते हैं हाँ ब्रेन से दिखाई दे रहा है, सेंस के थ्रू डेवलप आ रही है. तो यस, दे कैन सी बट दे कैन नॉट सी. दे कैन थ्रू दिस आईज दे कैन सी, दे कैन ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टफ फ्रॉम द ब्रेन पार ओनली, राइट? अच्छा आना बेटा, एक बात बताइए, अपार्ट फ्रॉम मम्मा एंड पापा, आपने किसके सामने हैव यू परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ एनीवन? मेरे कजन्स आए हैं, उन्होंने भी अभी बच्चापंती करी है. आन्या, शायद सृष्टि, ये सब जब इनके सामने परफॉर्म करा 3 बार, मैंने इन सबके पेरेंट्स के सामने, सबके सामने परफॉर्म करा. और उन्होंने कहा चलो मैं भी इनको करवा के देखूंगी, देखते हैं कि ये कैसे होता है. वो पूरा उन्होंने, आज भी क्लास लगी, मैंने भी आन्या दीदी को कार्ड्स दिए. और लास्ट टाइम से इन्होंने जब तक वो आए थे सब लोग इसके थोड़ा मामले में, आपको वो ना तो क्लोज आना पड़ेगा थोड़ा स्क्रीन के ना. यस हाँ मैम. जी. जब यस उन्होंने मैम. कार्ड दिखाए तो उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ इसमें शायद कुछ होगा कार्ड्स, तो वो कह रहे कि मैं कुछ लिख के देता हूँ, वो रीड करके दिखाओ तब मानेंगे. तो उन्होंने फिर कुछ लाइन लिख के दी, इसने वो भी रीड कर दी, तो उनको फिर सच में ये लगा कि हाँ कुछ है. Yes, very good. Any example about having performed this activity in front of friends or school? कहीं पे perform किया आपने? Have this? कहाँ perform किया आपने? मैंने स्कूल में परफॉर्म करा. थोड़ा तो बेटा थोड़ा पास आइए कैमरे के ना. Your voice is. जब मैंने Yes. स्कूल में परफॉर्म करा 6 months पहले, मैंने भी हमारा एक टॉपिक था हाउ टू कीप योर ब्रेन दैट सेफ एंड फ्रॉम दैट. तो मैंने, जैसे मैम ने बोला कि टेल मी सब, सारे बच्चे बता रहे थे कि रिड्यूस द यूज ऑफ मोबाइल फोन और ऑल दैट. तो मैं गई और मैंने मैम को बताया कि
मैम आफ्टर 6 मंथ्स आप मुझे देखोगे कि मैं आपको अपनी ब्लाइंड फोल्ड लगा के मैं आपको कार्ड्स रीड कर दूंगी। तब मैम ने इतना नहीं वो करा, मैम ने कहा ओके आई सी। और जब मैंने उस दिन मैम को दिखाया, सारे बच्चे ऐसे थे, और वो एक बार वापस करके दिखाइए, एक बार वापस करके दिखाइए। और मैम भी कह रही थी कि ये सब मैंने टीवी पे देखा है, मैंने कभी भी फर्स्ट टाइम मैम ने रियल लाइफ में देखा। आपको कैसा लगा? हाउ हाउ यू फील? बट आपकी मैम का था कि वाओ अमेजिंग चीज, आपको कैसा लगा बेटा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा हाँ कि मम्मा ने बहुत अच्छी चीज ढूंढी है मेरे लिए, कि मैं अपनी क्लास में बहुत, मतलब वो टीचर्स का भी ऐसे कि, और एक टीचर जैसे मैंने पीटी वाली मैम को दिखाया तो उन्होंने भी क्लास टीचर को बोला, तो क्लास टीचर हमारे जो स्टाफ रूम में है, सारी साइंस टीचर्स उधर बैठी थी, और मैम ने, और मैंने उन सारी साइंस वाली टीचर्स के सामने परफॉर्म करा, और उनका भी रिएक्शन था वाह। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा बेटा। आपने यू हैव टोल्ड वन गुड सेंटेंस कि मम्मा ने मेरे लिए बहुत अच्छी चीज ढूंढी है। हाँ There is जी। actually everyone, every parents want some good, every parents want the best for their kids. The only thing is there's awareness नहीं है चीज की। तो पेरेंट्स को कहूंगा कि लेट्स हैव some research over this कि what is happening in the market बच्चों के ब्रेन के लिए, and this is something that is very important। जीवन में हर डिसीजन लेने के लिए, हर जीवन को कड़ी को पार करने के लिए, सक्सेस के लिए, एवरीथिंग, कंपटीशन के लिए, एग्जाम्स के लिए, दिस organ is required। and because we are not aware how to utilize the stuff, so we should do something to make it more active, more sharper, and this is what we are doing in Bachchapanti using the brain techniques, brain exercises, brain games and a meditation। अच्छा मैम, एक और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं, 5 मिनट बात कर लेते हैं। आप बताइए मैम कि इसके ब्लाइंड फोल्ड के अलावा, राइट, मतलब आपने हैव यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट इन दी हाना कि पहले, मतलब शी इज ऑलरेडी ब्राइट, आई नो इट वेल, स्टिल बहुत होते हैं क्योंकि पेरेंट्स हमसे बताते हैं कि इंप्रूवमेंट हुआ फोकस कंसंट्रेशन में, तो आपने कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा इंप्रूवमेंट बच्चे के अंदर? लर्निंग इसके लिए इजी हो गई है, रिकॉलिंग पावर अब थोड़ी सी बड़ी है इसकी, कि जैसे साइंस के क्वेश्चंस होते हैं तो उनको कैसे रिकॉल करना है, तो वो पहले के बजाय अब थोड़ा जल्दी इसको लर्न हो जाते हैं, पॉइंट्स भूलती नहीं है। जैसे बीच में 10 पॉइंट्स होते थे कि 6 लर्न हो रहे हैं, 7 लर्न हो रहे हैं, तब वो चीज इजी हो गई है रिकॉल करना, कि सबका सब अब इसको लर्न होता है जल्दी। राइट। एक्चुअली मैम इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? भगवान ने हमें, देयर वर टू साइड्स ऑफ ब्रेन एज वेल, राइट? 5 सेंसेस है, टू साइड्स ऑफ ब्रेन है, बट हमारा जो रियल लाइफ में सिस्टम है ना, वी आर ओनली यूजिंग 2 सेंसेस, तो बाकी के ब्रेन सेल्स यूज ही नहीं कर पाते हम लोग। और सेकंड, वी हैव 2 साइड्स ऑफ ब्रेन एज वेल, बट हम लोग राइट हैंडेड तो लेफ्ट का यूज कर पाते हैं। और अमेजिंग बात क्या है कि राइट ब्रेन के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन मोस्टली 98% है राइट हैंडेड है, हम राइट हैंडेड की वजह से लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। हमने कंटेंट ब्रेन में डाला, नया कंटेंट डाला, वो फुल हो गया, वो एग्जिट मार गया। हमें क्या करना चाहिए? वी शुड लर्न द टेक्निक टू सेंड दिस कंटेंट टू द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, जिसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी है। हम बच्चों को क्लास के अंदर, हमारे पास वी हैव लॉट्स ऑफ ब्रेन जिम एक्सरसाइज, और कुछ हमारे पास रिकॉलिंग टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं हाउ यू कैन लर्न मोर कंटेंट इन लेस टाइम फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। ये बहुत पेरेंट्स के साथ, मतलब मैं हमेशा देता हूँ, कुछ पेरेंट्स के तो इस तरह क्या है कि सर क्या करा दिया क्लास में, बच्चे पढ़ नहीं रहे एग्जाम्स के टाइम पे। बाद में बताया बच्चों ने कि ऐसा नहीं था, पढ़ नहीं रहे हम, ऐसा था कि जो काम पहले 6 बार में पढ़ के होता था, अब 3 बार में पढ़ के होता है। जल्दी हो इट जाता है। मीन्स रिकॉलिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज क्लास के अंदर। देखिए, मैं बच्चे कल को आईआईटी में जाएंगे, आईएएस के लिए जाएंगे, नीट के लिए जाएंगे, 8 क्लास के बाद कॉम्पिटिशन, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाट वी रिकमेंड टू द पेरेंट्स कि 8 क्लास के बाद किड्स स्टार्ट यूजिंग देयर ब्रेन, उसमें बहुत कंटेंट की रिक्वायरमेंट है कंपटीशन के लिए। तो व्हाट शुड डू? 8 क्लास से पहले लेट्स डू समथिंग टू इंक्रीज द ब्रेन कैपेसिटी। जब कंटेनर बड़ा नहीं होगा, उसके अंदर कंटेंट ज्यादा नहीं आएगा, तो हाउ आर किड इज एबल टू रिकॉल द स्टफ? बिल्कुल। लर्निंग इज नॉट एन इशू विद द किड्स, ऑलवेज रिकॉलिंग इज इशू। तो रिकॉलिंग पे काम करना है, राइट? आना, आपकी व्हाट इज योर फेवरेट, मतलब क्लास का बताइए, क्लास में क्या होता है और क्या आपकी फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है? तो वैसे तो सारी फेवरेट है, पर जो एक्टिविटीज करवाते हैं, रिकॉलिंग और ब्लाइंडफोल्ड का, तो एज यूजुअल हमारा रिएक्शन वही होता है, वो तो एक्सपेक्टेड है कि ये होगा हमारा फेवरेट एक्टिविटी। बट रिकॉलिंग एट those activities जो find the difference, if this is the mother of this, who will be that, that is so good। और एंड अगर मैथ्स वाला हमारे पता नहीं एक क्वेश्चन आया था, हमारा आर्यभट्टा का मॉक टेस्ट था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, राइट द लास्ट 15th वर्ड फ्रॉम Z to A।
मुझे सारे बच्चे पूरी ABCD लिख रहे थे, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने ओरली कि हाँ दिस इज द 15th लेटर फ्रॉम दैट। वेरी गुड बेटा। So, Hana जो example दिया, तो actually what we do, we have covered few stuff from the reasoning and logical abilities as well. Brain के capacity को improve करने के लिए, intelligence को बढ़ाने के लिए, जो भी चीजें बच्चे को exposure की requirement होती है, जैसे आना example लिया, relations के questions भी हैं, coding decoding questions हैं, जो future में जाके kids has to face in the competition. हम ब्रेन की कैपेसिटी के साथ साथ उसका एक्सपोजर बच्चों को दे रहे हैं। उसका देखो बच्चों में कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया। आना के जो सारे फ्रेंड्स थे, दे आर राइटिंग A to C, ए की वैल्यू B, 2 की वैल्यू 3, C की वैल्यू 3, और अहाना नोज एवरीथिंग कि L की वैल्यू 12 होती है, P की 16 होती है, तो इसका हुआ टाइम बच गया। कंपटीशन में टाइम बचने का मींस है देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी फॉर द क्रैकिंग दैट एग्जाम, राइट। और आपने ये स्टफ आपने बताया, चलो हमने आपकी एक्टिविटी स्टफ बता दिया, ब्लाइंड फोल्ड ऑब्वियसली इज एवरीवन्स फेवरेट एक्टिविटी। इंप्रूवमेंट की बात करें, मम्मा ने बताया कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है, आप चीजों को जल्दी याद कर लें। आपने खुद महसूस किया कि और मतलब क्या इंप्रूवमेंट हुआ अपने अंदर? सर इम्प्रूवमेंट तो बहुत मुझे नजर आया है कि मैं कभी भी अगर कभी भी मैं कुछ साइंस का मैंने पिछले जो मेरा पहले एक साइंस का एग्जाम हुआ था उसके अंदर मैंने पूरा वीक लर्न करा, फिर भी संडे को जाके मुझे वो पूरा याद हुआ। बट आफ्टर डूइंग दिस अभी रिसेंटली आज ही मैंने लर्न करा और आज ही शाम को मैंने मम्मी को दोनों चैप्टर्स सुना दिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। हमारा बेटा इस तरह के रिव्यूज से और इस तरह से इंप्रूवमेंट, इफ वी आर मेकिंग सम डिफरेंस इन समवट लाइफ, दैट इज आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड। थैंक्स टू द पेरेंट्स वो सपोर्टेड अस पलवल से लेके अब मैं बताना चाहता हूँ व्हाई दिस फैमिली इज वेरी स्पेशल। वैसे एवरी फैमिली स्पेशल फॉर मी, सारे बच्चे हैं दैट लाइक असेट टू मी, बिकॉज बच्चापंती इज born from the Palwal and Ahana and their family is from the Palwal only, right? So this is why I have a special attachment with the because Palwal के parents ने हमें starting में support किया, उसके through ही we have started from Palwal to US then UK and Dubai and in 10 countries। एक बात मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगा, like Ahana is you are in a 7th grade बेटा, 5th grade? Fifth. Okay, you are in 5th grade, amazing, you are doing amazing। So जितना छोटा बच्चा होगा, जितना younger is the kid, we have more opportunity to work on the brain। That's why मार्केट में डिमांड को देखते हुए we start getting lots of inquiries। we have 3 months back we have launched a course with the name of बालपन, जिसके अंदर हम न्यू बॉर्न से लेके 5 years के बच्चों के मम्मा को we are giving the training and supplying the material। उसके अंदर भी start getting the reviews कि बच्चा क्या कर रहा है। if any kids from 0 to 15 they you want to know how our brain works and what is the, और देखो आप समझ लीजिए 0 से और 15 साल की जो अपॉर्चुनिटी होती है, इसके बाद we have no window of opportunity। तो जितना छोटा बच्चा होगा we have the opportunity to work on that। इसलिए आज ही लेट्स ट्राई टू रिसर्च, गूगल पे सब भरा हुआ है, लेट्स टॉक टू अस एज वेल कि बच्चा ब्रेन कैसे काम करता है। एंड दिस टेक्निक एवरीथिंग इज साइंटिफिक एंड वी आर डैम श्योर जो हम यूज कर रहे हैं बच्चा पंथी के, नो वन इज डूइंग द मार्केट, राइट। तो थैंक यू मैम आपके सपोर्ट के लिए और सभी पेरेंट्स के सपोर्ट के लिए थैंक यू, और द थैंक्स टू द रियली माय अमेजिंग टीम एज वेल, तो जिनकी वजह से दे डू अमेजिंग जॉब। स्पेशली सारे टीचर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट है, टीचर्स का सपोर्ट, इसकी वजह से हमारे बच्चों में रिजल्ट सारे वर गेटिंग रिकमेंडेशन। मैं स्पेशल थे, मैं आपको भी क्या पाऊंगा कि वी गॉट लॉट्स ऑफ वी रिसेंटली गॉट लॉट्स ऑफ रेफरेंस फ्रॉम योर फैमिली, इवन की लंदन से भी रेफरेंसेस आए हैं हमारे, गुड़गांव से भी आए हैं, फ्रॉम अच्छी फैमिली से। तो मैम थैंक यू फॉर दैट एज वेल। लास्ट में से मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, लास्ट आपसे पूछना चाहूंगा कि आहाना के लिए मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपके लाइक हम कैसे कराते हैं। लाइक आहाना ने भी कुछ बेसिक कोर्स किया है, यू हैव सीन लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट इन आर। तो इसमें क्या है, हमने कुछ बेसिक मेडिटेशन कराया, फिर बेसिक एक्सरसाइज करवाई है, बेसिक साइंस डेवलपमेंट किया है, तो वी कैन सी लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट। Now the next level is we are going to have a little bit more meditation, lots complex exercises, complex brain games, and next level of sense development। So you can see something more amazing out of this one that is exclusive for some parents only। So I'm बस waiting for that Ahana। We go to have a that evaluation round as well, एक certification भी होगा, we are going to present a certification to Ahana as well। मैम एक लास्ट आपसे जानना चाहेंगे कि आप डॉक्टर फील्ड से मैम, राइट? जी मैम तो डॉक्टर फील्ड के अंदर बच्चों के बच्चे भी आपके पास आ रहे हैं, हमने विल पावर की बात भी करी करने के लिए, और आप एज ए पेरेंट्स भी हैं, ठीक है जी, डॉक्टर भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, राइट?
और आपने बच्चों का कोर्स देख भी लिया है, बच्चे किस तरह से एंजॉय भी कर रहे हैं, बच्चों में इंप्रूवमेंट भी क्या है। तो आप क्या समझती हैं कि हाउ दिस कोर्स एंड व्हाट इज योर लास्ट मैसेज टू द पेरेंट्स? आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हमारी ऑडियंस थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे आर लाइक लाइव ऑन राइट नाउ, तो व्हाट इज योर लास्ट मैसेज टू देम? सब ब्रेन तो मतलब हमारी बॉडी में सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, और किसी की भी हेल्थ के लिए ब्रेन का जो है वो रोल वो सबसे ज्यादा है। अब हमारे पास भी सब जैसे पेशेंट्स आते हैं, तो वो एक होप लेके आते हैं कि हम यहीं से ठीक होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग दे रहे हैं, लेकिन एक जो फेथ है, जो उनका माइंड उनको बोल रहा है कि हाँ, ये सामने वाला मुझे ठीक कर देगा, तो वो माइंड गेम ही है। 50% जो डिसीजेज हैं वो कि आपकी सामने वाले की अगर पॉजिटिव थिंकिंग है तो वो वैसे भी ठीक हो जाएगा। तो यही बात स्टडीज में भी है कि बच्चे का अगर ब्रेन स्ट्रोंग है, वो अगर सोच रहा है कि मैं ये कर पाऊंगा तो वो कर लेगा। अगर उसकी थिंकिंग नेगेटिव है कि वो उसको पहले ही लगेगा कि ये तो इतना ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो नहीं कर पाता बच्चा। तो अगर हमारा ब्रेन स्ट्रोंग है तो हम कुछ भी कवर कर सकते हैं। ये सब सब लोग कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। असली बात है कि मन और माइंड और ब्रेन ये सब जुड़ी बातें हैं। अगर हमने ठान लिया है कि हमें करना है, और ठानने के लिए इसका पावरफुल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ब्रेन हेल्थ बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका फ्यूचर का टाइम है, वो इसने स्टडीज करनी है, लॉट्स ऑफ प्रेशर आ दिया, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आ दिया, और देयर इज अ ह्यूज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दैट वी हैव टू क्रैक। तो अभी से ही वी हैव टू थिंक समथिंग यूनिक, जिससे हम ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा पाए। और एक अच्छी बात है कि नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग टू ओपन दिस कोर्स फॉर द ग्रोन अप्स एज वेल, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का आता है कि वी वांट टू वर्क ऑन अ ब्रेन हेल्थ एज वेल, हमारी मेमोरी लॉस हो रही है 40s के बाद, एंड वी आर मतलब लाइक मेडिटेशन इज समथिंग अमेजिंग टू द एवरीवन। तो they want to have this interaction, they want to do this course as well, so future में we are planning to have for the adults as well. So Ahana beta, thank you, thanks a lot, and all the best for your future. And ma'am, thanks a lot again, thanks for supporting us. मैं personally किस दिन मिलता हूँ आपके आगे, will come there and well, and सर से मिलना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। Okay, Ahana, ठीक है, see you in the next class and the next level I will see you. Okay, we have to do lots of stuff, अभी तो starting है बेटा, ठीक है? चलो, okay बेटा, good थैंक यू night, सो मच सर। थैंक्स अ लॉट। thanks a lot man, thank you, ओके सर, गुड इवनिंग। good evening.